In this lecture, we'll see the Big M method of solving linear programs. So, what is the Big M method? Big M method is usually applied when we have greater than equal to or equal to types of constraints in our LPP. What is the use of this method? Big M method helps to find the initial basic feasible solution to the LPP. What do we mean by initial basic feasible solution? It helps to make the first table. The initial table is feasible. It helps to make the initial table feasible. The third point is to do this, to achieve point 2, the method introduces artificial variables in the problem. The next part is for every addition of artificial variables, there is a penalty term associated in the objective function. How is this penalty term added? We'll see. Because it depends on the nature of the optimization problem. Let's take an example. So these are the lines on which the Big M method works and what it does and how it does. So the major point is the addition of an artificial variable and the penalty terms associated in the objective. Okay, so let's say we have the problem of minimizing W equals to say 5y1 plus 12y2. The first constraint is y1 plus 3y2 greater than or equal to 6. The next constraint is y1 plus y2 greater than or equal to 5. Yi's are non-negative for all I. So let's say we don't know about the Big M method. We just know how to use simplex. So the first step would be to convert this into standard form. So to do that, what you do? We subtract a surplus variable. So let's say we subtract S1 and this becomes equal. For the next constraint, what we do? We subtract another surplus, say S2, and this is equal to 5. Yi is non-negative. The surplus are also non-negative for all I. The objective still remains the same because slack and surplus have no role to play in the objective. Okay. Now if we want to apply the normal usual simplex, we'll make the table. So what is the table? The table is y1, y2, then s1, s2, the RHS column, the basic variable column, the cost of the basic variables in the objective. So y1 का coefficient is 5, y2 का is 12, surplus का 0, इसका 0. Now we write the constraints. So what is the first constraint?
y1 का 1 3, then we have -1 0, right hand side is 6, next we have this is 2, this is 2 1 2 0 -1 5. Okay, now if we want to see कि कौन सा वेरिएबल बेसिक बनेगा, we have a problem. बेसिक वेरिएबल वो वेरिएबल बनता है जिस वेरिएबल के नीचे आप क्या देखो अभी फिलहाल के लिए 1 0. Find this 1 0 in this. Do you see 1 0? Is this column 1 0 column? No. Is this 1 0? No. Is this 1 0? It could have been 1 0 if this was a positive 1. क्या ये 1 0 है? ये भी नहीं है. So that means we are not able to find the column 1 0. और अगर ये कॉलम नहीं मिल रहा इसका मतलब है कि पहला बेसिक वेरिएबल नहीं मिल रहा. देखते हैं क्या दूसरा मिलता है कि नहीं. So for the second basic variable what we will find is 0 1. So do we see a 0 1 column? क्या ये 0 1 कॉलम है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ये कॉलम हो सकता था 0 1 बट विद नेगेटिव साइन दिस इज नॉट 0 1. दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सा बेसिक वेरिएबल यहां पर आएगा और कौन सा बेसिक वेरिएबल यहां पर आएगा. व्हाट वी कैन डू और थिंक ऑफ डूइंग इज इफ वी मल्टीप्लाई द एंटायर फर्स्ट कंस्ट्रेंट बाय अ नेगेटिव साइन, तो होगा क्या, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस. सेम काम आप दूसरे के साथ कर सकते हो उस -1 को 1 बनाने के लिए. मल्टीप्लाई दिस बाय नेगेटिव, दिस इज स्टेज 0, दिस बिकम्स 1, देन दिस बिकम्स -5. अब दिखता है हमको आइडेंटिटी का कॉलम. तो पहला कॉलम 1 0 वाला किसके नीचे दिखता है? S1 के नीचे. सो S1. नेक्स्ट कॉलम 0 1 वाला किसके नीचे दिखता है? लिखा हुआ S2 के नीचे. सो वी हैव आवर बेसिक वेरिएबल्स. उसके बगल में S1 कितना कोएफिशिएंट है? 0. इसका 0. बट नाउ यू सी देयर वी हैव अ प्रॉब्लम. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? जब भी हम सिंपलेक्स टेबल से कोई वेरिएबल का वैल्यू रीड करते हैं तो कैसे करते हैं? S1 इज इक्वल टू -6, S2 इज इक्वल टू -6. सो S1 S2 का वैल्यू कितना आ रहा है? -6 एंड -5. बट इज दिस अलाउड? यहां तो आप कह रहे हो कि S1 S2 दोनों नॉन नेगेटिव होंगे. सो हाउ कैन दे टेक नेगेटिव वैल्यूज? दैट मीन्स द वैल्यूज दैट दे हैव टेकन, नेगेटिव वैल्यूज, these values are not even feasible. So this is infeasible. बेसिक सोल्यूशन जरूर है. बेसिक सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि हमारे इस केस में y1 है नहीं यहां पर, तो y1 0 है. y2 है नहीं यहां पर, y2 0 है. S1 का वैल्यू कितना है? -6. S2 का वैल्यू कितना है? -5. ये बेसिक सोल्यूशन तो है, बट दिस इज अ बेसिक इनफीजिबल सोल्यूशन. एंड इनफीजिबिलिटी अराइजेस ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन. इसका मतलब है कि वो थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने किया क्या? हमने इन दोनों कॉलम्स को तो बना दिया आइडेंटिटी के कॉलम्स, बट हुआ क्या, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव आ गया. तो फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बदल गया, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी राइट हैंड साइड में या तो 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, जो कि यहां तक तो था. बट द मोमेंट यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय माइनस, ये तो बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव. सो अ नेगेटिव राइट हैंड साइड सजेस्ट कि देयर इज सम इनफीजिबिलिटी. So to remove this infeasibility, you apply the big M method. So this method is usually applied when we want to get an initial basic feasible solution, जो कि अभी तो नहीं मिल रहा. So what is the method? Big M method. और कैसे लगाते हैं? See. तो सबसे पहले तो क्या था, ये जो नेगेटिव लगाया हुआ था इसको रिवर्स करते हैं. जो पहले था शुरुआत में उसी को लेके चलते हैं. ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नेगेटिव भी नहीं था. तो देखते हैं ओरिजिनल क्या था और वहीं से देखते हैं क्या काम करना है हमको बिग एम के लिए. सो इनिशियली यू हैड दिस एज माइनस, दिस एज माइनस, और इन दोनों वेरिएबल्स का नहीं पता कौन से बेसिक वेरिएबल्स हैं. ओके, सो द बिग एम मेथड सेज इस माइनस के कॉम्पेंसेशन के लिए क्या करो, ये जो सरप्लस आया हुआ है विद अ नेगेटिव साइन, टू कॉम्पेंसेट दिस व्हाट यू डू is add some kind of a variable that has a positive coefficient. So the addition of a variable that you do with a positive coefficient is a1, और इसी a1 को बोलेंगे हम अब से आर्टिफिशियल वेरिएबल. सेकेंड वाले के लिए भी एक सरप्लस आया था, तो उसको भी कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करो,
add a new artificial variable. And now see the change in your table. Now, what are the variables involved? X, y1, y2 तो थे ही, s1, s2 भी आ गए थे, वो तो surplus थे. Now, what are the two more variables that you have added? There are two more variables that you have added, और वो variables का नाम क्या है? a1 and a2, और ये भी कैसे हैं? नॉन नेगेटिव. सो इसका मतलब है कि ये जो सिंप्लेक्स टेबल अभी दिख रही है, इसमें कुछ चेंज आने वाला है. एंड व्हाट इज दैट चेंज? सी, दैट चेंज इज, अब दो कॉलम और आएंगे. वो कॉलम कौन से वेरिएबल के लिए हैं? एक आएगा a1 के लिए, एक आएगा a2 के लिए. सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? बस a1 के लिए 1 आ जाएगा, a2 है नहीं पहली इक्वेशन में. दूसरी इक्वेशन में a1 नहीं है लेकिन a2 है. राइट हैंड साइड का क्या चेंज हो रहा है? राइट हैंड साइड में तो आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, यानी कि वो RHS जो पहले था वो अभी भी है. वो क्या है? 6 and 5. नाउ इफ यू सी देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई अ नेगेटिव, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी का कॉलम है 1 0, और किसके अंडर है? वो a1 के अंडर. सो a1 विल बी योर फर्स्ट बेसिक वेरिएबल. आइडेंटिटी का दूसरा कॉलम किसके अंडर है? a2 के अंडर. सो a2 वुड बी योर सेकंड बेसिक वेरिएबल. सो नाउ वी आर क्लियर, हमको यही दोनों कॉलम ढूंढने थे. सो a1 बिकम्स द फर्स्ट बेसिक वेरिएबल, a2 बिकम्स द सेकंड बेसिक वेरिएबल. y1 y2 का वेट तो लिख ही देते हैं ऊपर. y1 का वेट वाज 5, y2 का 12, स्लैक सरप्लस का तो 0 ही होता है, ये 0. अभी एक चीज नहीं पता, इसका वेट नहीं पता, इसका वेट नहीं पता, यानी कि ये भी नहीं पता, एंड वी डोंट नो दिस. सो व्हाट द बिग एम मेथड आल्सो टोल्ड यू कि फॉर एवरी artificial variable that you introduce, you have to pay a penalty in the objective. And what is that penalty? That penalty is, if you add an artificial variable, a1 add किया, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, आई राइट दिस, मैं पहले लिख देता हूं यहां पे. अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, सो द पेनल्टी दैट यू वुड गिव इज वेरी लार्ज. और वो वेरी लार्ज पेनल्टी कैसे देते हो? यू पॉजिटिव करते हो, मल्टीप्लाई कैपिटल एम. दिस इज द बिग एम. जो बिग एम नाम पड़ा है वो इसी के लिए पड़ा है. यू मल्टीप्लाई अ वेरी लार्ज नंबर विद a1. ये पहली पेनल्टी है जो a1 की वजह से मिली. आपने एक a2 भी ऐड किया तो एक पेनल्टी और आएगी, कैपिटल M इंटू a2. और ये जो m दिखा रहा है यहां पे, दिस m is tending towards infinity. It is positive and tending towards infinity. So this is the penalty that you pay for a minimization problem. जितने artificial variable जोड़े हैं आपने इन identity की columns को बनाने के लिए, उतनी आपको penalty terms देने पड़ेंगे अपने objective में. ठीक है? So this is what the big M method says. So हमारा problem क्या बन गया? हमारा problem है ये. This is our problem. क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा कैपिटल M, और यहां भी M. सो कैपिटल M आएगा यहां पे, यहां पर आएगा कैपिटल M, यहां पर कैपिटल M, और यहां पर कैपिटल M. सो टू समराइज, बिग एम मेथड में क्या करते हैं? बिग एम मेथड इसलिए लगाना पड़ता है बिकॉज स्टार्टिंग में यू सी एन इनफीजिबल सोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सरप्लस वेरिएबल. सो टू अकोमोडेट दैट सरप्लस, इस माइनस साइन को अकोमोडेट करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए, यू ऐड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल. सेम वे इसके साथ, तो आपको दो आर्टिफिशियल लगे एंड यू हैव मेड दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जो हमें चाहिए होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल बेसिक वेरिएबल बनेगा. तो a1 बना पहला, a2 बना पहला, ये रहा a1 और ये रहा a2. अब बिग एम मेथड आल्सो सेज कि फॉर एवरी आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन योर प्रॉब्लम, यू हैव टू पे अ पेनल्टी. सो a1 के लिए पेनल्टी इज प्लस m इंटू a1. प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की थी. a2 भी आपने ऐड किया, सो प्लस m इंटू a2. सो व्हाट इज द रूल? इफ द प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन, then the sense of the penalty is positive m into ai, I ranging from 1 to n. अगर आपने n वेरिएबल्स जोड़े हैं आर्टिफिशियल, तो प्लस m इंटू a1 प्लस m इंटू a2 प्लस m इंटू an. If the problem is a maximization type, so the penalty that you will pay is in terms of a negative m into ai, 1 to n. अगर प्रॉब्लम यहाँ मैक्स का होता तो हमने दो ही आर्टिफिशियल यूज किए हैं, तो क्या होता? माइनस m इंटू a1 माइनस m इंटू a2. So this is the rule for the adding the penalty term in your objective. तो ये टेम्पलेट है, जिसके बाद हमें कहानी नॉर्मल सिंप्लेक्स जैसी ही करनी होती है. तो zj माइनस cj निकालना होता है. आई नॉट सॉल्व दिस, मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं टू एक्सप्लेन बिग एम. आफ्टर दैट आई सॉल्व अ क्वेश्चन ऑल्सो.
ओके, सो दिस इज द टेबल जेड जे माइनस सी जे, व्हाट इज द वैल्यू, पहला वैल्यू कितना आएगा, मैं बस हीरो निकाल देता हूँ, तो पहला वैल्यू आएगा 2m minus 5, the next value is 5m minus 12, the next value is minus m, the next value is minus m, the next value is 0, the next value is 0. हाँ, यहाँ पर z का वैल्यू अभी के लिए नहीं निकालना, सो कब तक नहीं निकालते, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द z वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू इज नॉट कैलकुलेटेड till the time we have an artificial variable in the BV column. That means it is a basic variable with a positive value. जैसे इस केस में A1 is in the basic variable column or it is having a positive value 6. A2 is in this column, it is with a positive value. तो जब तक एक भी आर्टिफिशियल है with a positive value, you will not calculate this value. क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल का बेसिक वेरिएबल के कॉलम में होने का मतलब क्या है कि अभी आपका कोई आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो व्हाट इट सिग्निफाइज, सेकंड पॉइंट लिख देता हूं मैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, द प्रेजेंस ऑफ एन artificial variable at the optima table with a positive value denotes or means, signifies infeasibility in the problem. यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का सिर्फ एक ही रोल है, ये शुरुआत की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने में हेल्प करना, और जैसे जैसे आप आइट्रेशन लगाते चले जाओ इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को एक एक करके ये बेसिक वेरिएबल के कॉलम से चले जाना चाहिए। अगर ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऑप्टिमा पे जाके पॉजिटिव वैल्यू के साथ बचे रह गए, विद अ पॉजिटिव वैल्यू ये बचे हुए हैं, यानी कि यहां पर ऑप्टिमा में A1 अगर बचा है तो कुछ पॉजिटिव आ रहा है, सो दिस वुड इंप्लाई इनफीजिबिलिटी। यानी कि इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऑप्टिमा तक रीच होते होते या तो बेसिक वेरिएबल के कॉलम में ही नहीं दिखना चाहिए, या तो ये यहां पे ही ना दिखें, और अगर यहां पे दिखते भी हैं तो यहां पर वैल्यू 0 हो जाएंगे। So they are just there to start your table, and once you have started, they should leave your basic variable column. अगर ये रहते हैं तो problem is infeasible. We'll see the example of infeasibility, but this is the whole point of it. Okay. One more point I want to make कि ये जो पेनल्टी टर्म दिया है वो क्यों दिया है। देखो मैंने ये दिया था मिनिमाइज 5y1 प्लस 12y2 प्लस कैपिटल M A1 प्लस कैपिटल M इंटू A2। लेट से ऑप्टिमा पे जाते जाते A1 का वैल्यू इज पॉजिटिव और A2 नहीं है, यानी कि A2 हैज बिकम नॉन बेसिक और वो 0 हो गया है, ठीक है ना। ऑप्टिमा आ चुका है, ये ऑप्टिमा की बात हो रही है। ऑप्टिमा पे ऐसा हो चुका है कि A1 आपका बेसिक वेरिएबल के कॉलम में बचा हुआ है और A2 गायब हो चुका है, वो 0 है, यानी कि वो नॉन बेसिक है। तो यानी कि ये टर्म गायब हो गया बिकॉज A2 0 है। बट इफ A1 इज स्टिल पॉजिटिव एंड M इज अ वेरी लार्ज नंबर, वेयर इज दिस प्रोडक्ट टेंडिंग टूवर्ड्स, क्योंकि यहां हमने माना हुआ है कि A1 इज वेरी लार्ज, सॉरी M इज वेरी लार्ज। इफ M इज वेरी लार्ज and you are multiplying this M with a positive quantity, this portion itself is tending towards infinity, and you are trying to minimize, the objective is to minimize. So can the minimization objective have infinity as an answer? So the objective if the objective has a minimization answer, due to what, due to the presence of A1 being positive, this implies that the problem is infeasible.
तो अगर ऑब्जेक्टिव में एडिशन प्लस m के साथ लिखा हुआ है आपने a1, तो होगा क्या, वो जो प्रॉब्लम है फोर्स करती रहेगी a1 को 0 बनाने के लिए, क्योंकि अगर एक बार a1 0 बन गया तो फिर ये टर्म हट जाएगा और फिर आपका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव आ रहा है ऑप्टिमा पे। सो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ गिविंग द पेनल्टी। पेनल्टी से ये होने लगता है कि a1 a2 को प्रॉब्लम चाहती है बेसिक वेरिएबल से भगाना। ओके, सेम काम मैक्स के लिए भी है। अगर ये मैक्स होता, इफ दिस वाज मैक्स, तो हम ऑब्जेक्टिव में पेनल्टी टर्म कैसे देते, -ma1 -ma2। और अगर a1 पॉजिटिव बचा रह गया और मान लो a2 भी बचा रह गया, इस केस में कोई एक भी बचा रहे तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब कि ये दोनों टर्म मिलजुल के कहां जा रहे हैं, दीज टू टर्म्स कंबाइंड आर गोइंग टुवर्ड्स -infinity नाउ, बिकॉज यू हैव अ माइनस साइन बिफोर देम। तो आप क्या देख रहे हो कि मैक्सिमाइजेशन का आंसर आ रहा है -infinity। तो मैक्सिमाइजेशन का आंसर आ गया -infinity। सो इज दिस फीजिबल? सो टू फोर्स दीज टू वेरिएबल्स आउट ऑफ दैट बेसिक वेरिएबल कॉलम, हम ये पेनल्टी टर्म लगाते हैं, क्योंकि ये गलत लग रहा है इस ऑब्जेक्टिव के साथ। So that is why this problem forces the artificial variable to move out if it has a solution. अगर प्रॉब्लम है ही इनफीजिबल तो ये कभी नहीं जाने वाले बेसिक के बाहर, a1 a2 कोई एक तो पक्का रह जाएगा विद अ पॉजिटिव वैल्यू। So I'll take up more examples in the next case, in the next class. So till then,